without you. Welcome to my channel R&D classes. Today we will study about the fertilization and double fertilization in angiospermic plant, that is flowering plant. Fertilization, fusion of two different type of gamete to form a diploid structure zygote, that is 2N, is known as fertilization. That means जब दो डिफरेंट टाइप के गैमीट आपस में फ्यूज करके एक द्विगुणित संरचना डिप्लॉयड स्ट्रक्चर 2N का फॉर्मेशन करते हैं तो इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोला जाता है. फर्टिलाइजेशन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर इन 1884. फर्टिलाइजेशन को सबसे पहले खोजने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम स्ट्रासबर्गर है. इन्होंने 1884 ईस्वी में इसको खोजा और बताया. और एंजियोस्पर्मिक प्लांट यानी फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं उनमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है. नाउ डबल फर्टिलाइजेशन ओनली अकर इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट. Double fertilization first of all discovered by S.G. Navaschin in 1898. Grignard discovered in double fertilization in Lilium and Fritillaria. In angiospermic plant, triple fusion take place. It also discovered by G.S. Navaschin in 1898. कहा गया डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है यह केवल और केवल एंजियोस्पर्मिक प्लांट या फ्लावरिंग प्लांट में होता है. डबल फर्टिलाइजेशन को सबसे पहले एस.जी. नवास्चिन ने 1898 में डिस्कवर किया. गिग्नार्ड ने जो है लीलियम और फ्रिटिलेरिया नामक प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर किया. और बताया जाता है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ट्रिपल फ्यूजन भी होता है और इस ट्रिपल फ्यूजन को भी एस.जी. नवास्चिन ने 1898 में डिस्कवर किया. Now we will study about the process of double fertilization in angiospermic plant. In angiospermic plant, when the process of pollination take place, then the pollinated pollen grain reach to the stigma of pistil, and these pollen grain attach to the stigma with the help of mucilaginous substance. After the attachment, the pollen grain absorb the moisture from stigma and become swell up. After this, the vegetative cell of pollen grain germinate to form a tube-like structure which is known as germ tube or pollen tube. These germ tube or pollen tube rupture the tissue of style and reach to the micropyle of ovule. At this time, the generative cell of pollen grain divide to form the two male gamete or two male nuclei. Two male gamete are two male nuclei. After the formation of two male gamete or two male nuclei, the synergids of ovule split and provide the way for the male gamete. During the splitting of synergids, few chemical changes take place, that is chemical reaction take place, and few chemical substance release which is responsible for the splitting of synergids. When the synergid split and it provide way for the male gamete, then the first male gamete reach to the egg cell and fertilize to form a diploid structure zygote. Now the fusion of first male gamete with egg cell to form the diploid structure zygote is known as syngamy or true fertilization. This syngamy or true fertilization discovered by Strasburger. Now the second male gamete reach to the polar nuclei where the one nucleus of male gamete and two nucleus of polar nuclei are fertilized to form a triploid structure endosperm. Thus, in case of one embryo sac of an ovule, the two male gamete fertilize together to form the two different structure, that is diploid structure zygote and diploid structure endosperm. So that this type of fertilization is known as double fertilization because two type fertilization take place within an embryo sac of an ovule. And in this ovule, the triple fusion also take place because the one nucleus of male gamete and two nucleus of polar nuclei, that means three nucleus, are fertilized or fused to form a diploid structure. Thus there is the fusion of three nuclei
to form a diploid structure endosperm. Therefore it is also known as triple fusion. Thus in this process, in case of angiospermic plant, the two male gamete fertilize within an ovule and form the two different structure, that is diploid structure zygote and diploid structure endosperm, so that this type of fertilization is known as double fertilization. And double fertilization first of all discovered by S.G. Namastian in 1898, and the triple fusion is also discovered by S.G. Namastian in 1898. Thus this is the process of double fertilization in angiospermic plant. Now in हिंदी कहा गया है कि जब एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं इनमें जब पॉलिनेशन परागण की क्रिया होती है तो परागण द्वारा सबसे पहले परागण पॉलिन ग्रेन जो होते हैं वो स्टिग्मा पर पहुंचते हैं और वे स्टिग्मा पे कुछ म्यूसिलेजिनस पदार्थ पाए जाते हैं और इन म्यूसिलेजिनस पदार्थ से ये चिपक जाते हैं। फिर उसके बाद ये स्टिग्मा से उसके मॉइस्चर नमी को एब्जॉर्ब करते हैं और फूल जाते हैं। फिर उसके बाद पॉलिन ग्रेन की जो वेजिटेटिव सेल होती है वह सेल जर्मिनेट करती है जर्म पोर वाले रीजन से और पॉलिन ट्यूब या जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। और यह पॉलिन ट्यूब या जर्म ट्यूब स्टाइल के ऊतकों को चीरता हुआ सीधे ओव्यूल के माइक्रोपाइल तक आ जाता है। और ठीक उसी समय इस पॉलिन ग्रेन का जो जनरेटिव सेल होता है वह डिवाइड होकर के दो मेल गैमीट का फॉर्मेशन करता है। अब जब दो मेल गैमीट बन जाते हैं तो पहला मेल गैमीट जो होता है एम्ब्रियो साइट में इंटर करता है, लेकिन उसके एंट्री से पहले दो सिनर्जिड्स की सेल पाई जाती है। ये दोनों सिनर्जिड्स की सेल फट जाती हैं और पहले मेल गैमीट को जाने के लिए रास्ता प्रदान करती हैं। लेकिन जब सिनर्जिड्स फटता है तो उस समय कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और कुछ केमिकल का सिक्रीशन होता है जिसके बारे में अभी वेल नोन नहीं है, अच्छी तरह जानकारी नहीं है, लेकिन वह कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, स्प्लिट करता है सिनर्जिड्स, यानी सिनर्जिड्स फटता है और पहला मेल गैमीट एम्ब्रियो साइक में प्रवेश करता है। और प्रवेश करके यह सबसे पहले एग सेल से ही निषेचित होता है, फर्टिलाइज होता है और फर्टिलाइज होकर के पहला डिप्लॉयड स्ट्रक्चर द्विगुणित संरचना जाइगोट का निर्माण कर लेता है। और मेल गैमीट और एग सेल के फ्यूजन से जो द्विगुणित संरचना जाइगोट बनती है इस प्रोसेस को सिंगेमी या वास्तविक निषेचन ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब जो होता है दूसरा मेल गैमीट आता है और वो पहुंच जाता है पोलर न्यूक्लियाई के पास, जहां पे पोलर न्यूक्लियाई के दो न्यूक्लियस और मेल गैमीट का एक न्यूक्लियस यानी कुल 3 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करते हैं और फ्यूज कर करके एक त्रिगुणित संरचना ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर त्रिगुणित संरचना एंडोस्पर्म का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं एक ओव्यूल के एम्ब्रियो सैक में एक साथ दो मेल गैमीट का फर्टिलाइजेशन निषेचन होता है, इसलिए इस प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन कहते हैं। अब जो होता है दूसरा मेल गैमीट और पोलर न्यूक्लियाई, तो दूसरे मेल गैमीट का एक न्यूक्लियस और पोलर न्यूक्लियाई के दो न्यूक्लियस यानी कुल 3 न्यूक्लियस एक साथ फ्यूज होकर के एक त्रिगुणित संरचना एंडोस्पर्म का निर्माण करते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। और डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में इसको सबसे पहले एस.जी. नमास्टिन नामक वैज्ञानिक ने 1898 ईस्वी में खोजा था और इन्होंने ही ट्रिपल फ्यूजन के बारे में भी बताया और यानी एस.जी. नमास्टिन ने भी ही ट्रिपल फ्यूजन के बारे में बताया और बोला कि ट्रिपल फ्यूजन की क्रिया केवल और केवल एंजियोस्पर्मिक प्लांट या फ्लावरिंग प्लांट में ही होता है। Now the next topic, entry of pollen tube in ovule or embryo sac. Pollen tube enter into embryo sac or ovule by 3 methods, that is porogamy, mesogamy and chalezogamy। यानी कहा गया है कि इस ओव्यूल के एम्ब्रियो सैक में पॉलन ट्यूब कैसे इंटर करता है, तो बताया गया है कि ओव्यूल के एम्ब्रियो में पॉलन ट्यूब 3 मेथड से इंटर करता है, जिसे क्रमशः पोरोगैमी, मीजोगैमी और चलेजोगैमी कहते हैं। अब हम जो है पहला टॉपिक पढ़ेंगे पोरोगैमी। पोरोगैमी, द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब और जर्म ट्यूब
into embryo sac of ovule through micropyle, then it is called porogamy. For example, mostly angiospermic plant. That means कहा गया है कि जब पॉलन ट्यूब या जर्म ट्यूब जो होते हैं ओव्यूल के एम्ब्रियो सैक में माइक्रोपाइल के द्वारा इंटर करते हैं तो इस प्रोसेस को बोला जाता है पोरोगैमी। और मोस्टली एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं उनमें पॉलन ट्यूब की एंट्री पोरोगैमी मेथड द्वारा होता है। यहाँ फिगर में दिखाया गया है, ये हमारा ओव्यूल है, ये हमारा माइक्रोपाइल है और ये हमारा पॉलन ट्यूब। देखिए माइक्रोपाइल वाले रीजन से, माइक्रोपाइल वाले भाग से एम्ब्रियो सैक में क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है, जिसकी वजह से इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, पोरोगैमी। नाउ सेकेंड, मेसोगैमी। The entry of pollen tube or germ tube into embryo sac of ovule either through funicle or integument, then it is called mesogamy. In case of Pisticia, the pollen tube enter into embryo through funicle, while in case of Cucurbita, the pollen tube enter into embryo sac through the integument. Thus, in this mesogamy, if the pollen tube enter into embryo sac of ovule either by the funicle or by endosperm, through funicle or through integument, not endosperm, through integument, then this is known as mesogamy. In this figure, mesogamy, the pollen tube enter into embryo sac through the integument region, there thus it is the mesogamy. कहा गया है कि जब पॉलन ट्यूब या जर्म ट्यूब जो होता है ओव्यूल के एम्ब्रियो सैक में या तो फ्यूनिकल के द्वारा या तो इंटीगुमेंट के द्वारा, दोनों में से किसी के द्वारा, चाहे फ्यूनिकल के द्वारा फ्यूनिकल के वाले भाग से इंटर करे या इंटीगुमेंट वाले भाग से इंटर करे, तो इन दोनों केस में ही इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मेसोगैमी कहा जाता है। अब पिस्टिसिया जो है इसमें फ्यूनिकल वाले भाग से पॉलन ट्यूब इंटर करता है एम्ब्रियो सैक में, जबकि कुकुरबिटा में यह जो होता है इंटीगुमेंट वाले भाग से इंटर करता है। यहाँ पे फिगर में आपको केवल इंटीगुमेंट वाले भाग का दिखाया गया है, तो यानी कहा गया है जब फ्यूनिकल वाले भाग से या इंटीगुमेंट वाले भाग से, दोनों में से किसी भाग से अगर एम्ब्रियो सैक के अंदर पॉलन ट्यूब इंटर करता है तो इस टाइप को क्या बोला जाता है, मेसोगैमी बोला जाता है। नाउ द थर्ड, chalazogamy. The entry of pollen tube or germ tube into embryo sac of ovule through chalazal region, then it is called chalazogamy. For example, Casuarina. कहा गया है कि जब पॉलन ट्यूब या जर्म ट्यूब ओव्यूल के एम्ब्रियो सैक में चलाजा वाले भाग से, चलाजा वाले भाग से इंटर करता है तो इस प्रोसेस को चलाजोगैमी बोला जाता है। और यह कैसुरिना में देखने को मिलता है। फिगर में दिखाया गया यह एक ओव्यूल है और यह ओव्यूल का यह चलाजा वाला भाग है और इसी चलाजा वाले भाग से पॉलन ट्यूब क्या कर रहा है, एम्ब्रियो सैक में इंटर कर रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, चलाजोगैमी। और एक बात मैं आप सभी लोगों से ये भी कहना चाहता हूं कि आप लोग इसी लेक्चर को सुन करके या वीडियो को बार बार देख करके, पॉज कर करके देख करके अपना नोट्स खुद से प्रिपेयर कीजिए, अपना नोट्स खुद से प्रिपेयर कीजिए। ठीक, बस इतना ही, दैट्स ऑल।